Hello, welcome back to my accounts class. Now, student, the topic is basic accounting term, and a number of basic accounting terms are there which are used to prepare the accounts. Now, today in this video, we are going to learn the term liabilities. Liabilities. These are the obligations of the business. Obligation means duties. Duties which are to be followed, you can say, which are to be fulfilled by the laws. Means ऐसी obligations वो कहलाती हैं जो हमें legally duties पे fulfill करनी पड़ती हैं. जैसे हमने किसी से 5,000 रुपये लिए, अभी हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें उसके 5,000 रुपीज पे करने हैं. ड्यूटी. और जब कहीं ना कहीं प्रेशर हो लॉस का कि आपने किसी 5,000 रुपीज दिए तो पे तो करने पड़ेंगे ही. दिस ड्यूटी यू हैव टू परफॉर्म, मीन्स यू हैव टू फुलफिल. यू कैन से दैट दिस इज द लायबिलिटी. ऑब्लिगेशंस, द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस. ओड मीन्स ओड रखा है, हमने किसी का ले रखा है, लेकर रखा हुआ है, लेकर यूज कर लिया, हमने उधार माल खरीद लिया. दैट इज द ओड, मीन्स हमने ओड लिया. The amount owed by the business, or you can say the amount payable by the business, is called liabilities. The obligations which are to be paid by the business, or the amount or anything owed by the business, or you can say the amount or anything payable by the business is called liabilities. Maybe for the internal liability or the external liabilities. हमें हमारे बिजनेस को पे करना है. अब हम क्या कह सकते हैं, लायबिलिटीज को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज. व्हाई वी हैव कैटेगराइज्ड दिस लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ये जनरेट हुआ कि फंड्स आपके कहां से जनरेट हो रहे हैं, असेट्स आपकी कहां से आई हैं. इंटरनल लायबिलिटी इज द लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर और इन द नेम ऑफ ओनर, that is called capital plus reserves plus surplus etc. for the owner, in the name of owner, or you can say towards owner. Why? From the accounting point of view, we consider the businessman and the business to be separate entities, separate thing. The accounts are prepared from the point of business, not of businessman. Whatever the amount or any asset brought in the business by the businessman is the internal liability of the business towards the businessman. हम कह सकते हैं कि अकाउंट्स जो बनते हैं वो बिजनेसमैन के नहीं बनते, बिजनेस के बनते हैं. और जब बिजनेस को आपने बिजनेसमैन को अलग कर दिया तो बिजनेसमैन जो भी अमाउंट लेकर आता है वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, बिजनेसमैन को पे करना है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, आई एम गिविंग यू द हियर एग्जाम्पल. राकेश इज अ पर्सन. Rakesh, he is having something in his hand, assets means cash 50,000 plus the stock rupees 60,000, and he is starting a business. Now he will be called the businessman. Or you can say the owner of the business. Now he has started a business and the name of the firm is Rakesh and Sons. We are separating these two, means owner is different from the business. Means businessman is separate from the businessman only from the point of view of accounts, not from the point of view of laws. Rakesh and Sons. Here
when you will see that in the business some assets are coming, some assets, the assets are cash of rupees 50 and stock of rupees 60. Now the total of this is 110, means 1 lakh 10, 110, whatever, 110,000 lakh. And the total of this is the internal liability of the business. And this internal liability of the business towards a businessman is called capital. 110. By this way we can say the total of liability side is always equal to the total of asset side. It is also called accounting equation. Hope you have got this. Now we are talking about the external liability. External liabilities are the debts or the loan or the borrowings of the business from outsiders. हमने किसी से उधार माल खरीदा है, हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं. किसी से लोन लिया है तो लोन है, बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन, बिल्स पेबल्स, ये सारी की सारी बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं किसी बाहर वाले के लिए कि पे करना है. हियर वी कैन गिव यू एग्जांपल. लेट्स सपोज आपने स्टॉक परचेज करा 40 रुपीस का क्रेडिट बेसिस पर. तो जरा यहां देखिए आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज को. जैसे ही आपने स्टॉक परचेज किया आपके फॉर्म में असेट इंक्रीज होती है, स्टॉक प्लस हो जाएगा कितने रुपए का, 40 रुपीस का. तो असेट साइड का टोटल हो गया 150. पहले 110 था. क्योंकि उधार परचेज किया है तो आपकी लायबिलिटी बनती है और हम इन्हें कहते हैं क्रेडिटर्स 40 रुपीस के. इस तरीके से आपकी टोटल असेट्स 150, टोटल लायबिलिटीज 150. Internal liability capital 110, external liability 40 in the name of creditors. Creditors are the suppliers who supplies the goods to us. और भी डिटेल में है creditors, बाद में बताएंगे. फिलहाल इतना इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट होगा. अब ये आपका जो नेक्स्ट हुआ ना, आप ये कह सकते हैं इस टाइम आपका ये नेक्स्ट पर्सन है जिसका नाम है बिजनेस. बिजनेस और ये आपकी कहलाती है जो आपने एक फॉर्मेट बनाया है बैलेंस शीट. इस फॉर्मेट को बैलेंस शीट कहा जाता है. इन द शॉर्ट फॉर्म आई एम राइटिंग हियर बैलेंस शीट BS. नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मींस पीरियड in which the amount or the liability is to be paid. First, long term liability. Long term, or you can say non-current. When you are talking about the long-term liability, these are the liabilities which are to be paid in more than one accounting year. More or after one accounting year, called long-term liabilities or non-current liabilities. For example, आपने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, 1 साल से ज्यादा के लिए लेंगे तो आपको बेटा कहलाएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज. जब आप करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो करंट लायबिलिटीज क्या होगा आपका, विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर. यहां भी 1 अकाउंटिंग ईयर है और ये भी 1 अकाउंटिंग ईयर. 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर जैसे कि किसी से गुड्स परचेज कर ली, आपके क्रेडिटर्स जो अभी हमने एग्जांपल दिया था एक्सटर्नल लायबिलिटी का, बाहर वाले से गुड्स परचेज कर ली. अब क्रेडिटर से किसी से माल उधार खरीद के लाओगे तो कितना ज्यादा से ज्यादा वेट करेगा वो, 1 वीक
2 वीक्स, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, 1 साल के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना होता है उन क्रेडिटर्स का जिनसे हमने उधार मांग खरीदा है, या कभी कभी थोड़े बहुत पीरियड के लिए हम ले लेते हैं। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टीजेंट, contingent liabilities, these are not fixed, these are not fixed, fixed नहीं होती। For example, in the case of company, when we are talking about the companies, there may be a number of cases sued by the customers, investors, whatever. Many of them, these cases may be some fraud, and the chances or probability of their winning is very low or poor. But some of the cases, 1 or 2, 3 cases or few cases, may have the genuine reason or may have the probability to win, and there will be the probability of paying something to them, which will create the liability. This liability is not shown in the balance sheet. As a footnote we have to write. कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटी कहलाती हैं जो शायद फ्यूचर में हो सकती हैं। जैसे किसी ने केस किया हुआ है, कस्टमर ने कर दिया, उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आई, या हमसे किसी को लॉस हो गया, वो कह रहा जी हमें तो बिजनेस की वजह से लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारी गैस कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई, उसमें गैसेस वगैरह जाती हैं और वो एनवायरनमेंट में गई, किसी ने क्लेम कर दी इसको पोल्यूशन हुआ है, इससे कुछ नुकसान हुआ है, केस कर दिया। ऐसे छोटे मोटे केस चलते रहते हैं, बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी देखी जाती है। शायद 1-2 केस ऐसे हो कि शायद वो जीत जाएं, अभी लायबिलिटी नहीं है, शायद ऐसी लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है, इट मे हैपन इन द फ्यूचर। दैट्स व्हाई वी हैव टू इन एडवांस वी हैव टू मेक अ फुटनोट आफ्टर द बैलेंस शीट। तो ऐसी लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में शो ना करके बैलेंस शीट के नीचे एक फुटनोट दे दिया जाता है, ताकि हमें वो फिलहाल ध्यान रहे और फ्यूचर में हम उसके लिए अवेयर रहें कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो ये वो लायबिलिटीज कहलाती हैं जो अभी फिक्स नहीं हैं, जो फ्यूचर में हो सकती हैं। Hope you have got the topic, the basic accounting term, liabilities. Thank you.